Cauchy-Riemann equation. Cauchy-Riemann equations. Okay. So what is Cauchy-Riemann equation? Statement. Cauchy-Riemann क्या बोलता है? If fz, some function fz is differentiable at it's say point z equals to some z, चल ठीक है, z equals to x iota y is we are taking a general point. If fz is differentiable at z equals to x plus iota y, okay, then first thing and fz तो हमने define करा हुआ, fz is u plus iota v where u and v are function of xy. Then first thing partial derivative of u and v exists and they are continuous. ठीक है, मीन्स यू एक्स एंड वी वाई ये जो जितने भी होंगे पार्शियल डेरिवेटिव मीन्स differentiate partially with respect to x, del u del x, del v del y and so on, del v del x, all these will exist, further they will be continuous. And second, if fz is differentiable then this will hold and this will also hold, and this is what ux will be equals to vy and uy will be equals to minus vx. यहाँ पे ux is nothing but del u by del x, differentiating u with respect to x keeping y constant, partial derivative of u with respect to x, uy is del u del y, vx is del v del x, vy is del v del y. Okay, so basically if fz is differentiable at a general point z equals to x plus iota y, then its partial derivative of its component real and imaginary part u and v exist and even they are continuous. Second thing, it satisfies ux equals to vy and uy equals to minus vx. This condition is known as Cauchy-Riemann equation. This second condition is known as Cauchy-Riemann equation. ठीक है, one very important thing in this is that this is only necessary condition. Cauchy-Riemann equation is only necessary condition, it is not sufficient. कहने का मतलब ये है कि अगर f dash z exist करता है then we can say that ux equals to vy and uy is equals to minus vx, but if this condition is satisfied then we cannot say कि f dash z exist करेगा. Means f dash z implies that ux equals to vy, uy equals to minus vx, but this condition doesn't imply f dash z exist. Okay, it may or may not exist. Okay, even if Cauchy-Riemann equation is satisfied, function fz may be differentiable or may not be. So this is not a sufficient condition, तो इसको सफिशिएंट बनाने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन इम्पोज करनी पड़ेगी. सो विल डिस्कस दैट आल्सो. अब Cauchy-Riemann equation are important for civil and like exams, forest and all. So Cauchy-Riemann equations, इसका प्रूफ वी कैन सी ये कंडीशन कैसे आई. इट इज गिवन कि f dash z exists. ओके, सो f dash z क्या है हमने पढ़ा, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन एट जनरल पॉइंट दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 fz प्लस h माइनस fz डिवाइड बाई h, ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी. ओके, इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट, इसको हम लोग एक्स वाई के टर्म में, अगर u v के टर्म में भी ले जा सकते हैं इसको,
या एफ में रहने दो, इसको हम क्या कर सकते हैं, लिमिट ए बी टेंस टू 0 0, यहाँ पे h is nothing but a plus iota b, so h a and b are real numbers. Okay, they belong to the set of real numbers. So when h is approaching towards 0, तो a और b 0 0 की तरफ अप्रोच करेगी. So f z plus h जो है इसको we can write, this can be written as f x plus a plus iota y plus b minus f x plus iota y divided by h. यहाँ तक सिंपल है. अब एफ डैश जेड एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब ये जो लिमिट है वॉट एवर डायरेक्शन वी कम इन इट विल एग्जिस्ट. ठीक है, किसी भी डायरेक्शन से लिमिट की डेफिनेशन ही वही है. सो अगर हम लोग एक्स एक्सिस के अलोंग जाते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, वाई जीरो हो जाएगा, नॉट वाई जीरो, मतलब ए और बी यहाँ पे वेरिएबल है, ए और बी हमारी लिमिट है यहाँ पे. सो इफ वी आर अप्रोचिंग ऑन एक्स एक्सिस तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी जीरो हो जाएगा. अगर बी जीरो हो गया तो ये क्या हो जाएगी, लिमिट बी जीरो है तो ए जीरो कर दो, ए अप्रोचिंग टुवर्ड्स जीरो, तो बी जीरो, ए इज नॉट जीरो बट ए लिमिटिंग वैल्यू इज जीरो. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस ए प्लस आयोटा वाई, बी तो जीरो हो गया, माइनस एफ एक्स प्लस आयोटा वाई डिवाइड बाई ये ए प्लस आयोटा बी है, बी इज जीरो सो दिस इज ए. नाउ सी, इसमें क्या हो रहा है कि y जो है वो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इट इज कांस्टेंट. यहाँ पे भी आयोटा y है, यहाँ पे भी आयोटा y है, बट यहाँ x प्लस ए है एंड दिस इज x. बेसिकली वैल्यू ऑफ x इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू a. तो ये क्या है, हम लोग जानते हैं कि जो भी एफ डैश एक्स होता है जैसे, तो क्या होता है, लिमिट x टेंस टू जीरो एफ एक्स. ठीक है, लिमिट h टेंस टू जीरो, हाँ एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ जीरो डिवाइड बाई एच, ये होता है. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी वही हो रहा है, एक्स प्लस ए माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई ए. सो दिस व्हाट इज दिस, एट ए इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स जीरो, सो दिस इज नथिंग बट डेल एफ बाई डेल एफ बाई डेल एक्स. ओके, बेसिकली दिस इज चेंज ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ठीक है, ये तो दिस इज लाइक एच, यहाँ पे जो एच है इट इज एक्टिंग लाइक एच. ओके, सो दिस इज एक्स कॉमा वाई. ओके, समझ में आ गया होगा. सिमिलरली इफ वी अप्रोच फ्रॉम वाई एक्सिस तो यहाँ पे एक्स जीरो कर देंगे, एक्स जीरो करके सिमिलरली विल डू, सो इट विल कम आउट टू बी आयोटा डेल एफ डेल वाई एट द सेम पॉइंट. ठीक है, सो बेसिकली हमें क्या रिजल्ट हुआ, सो नाउ दिस रिजल्ट हमें याद रखने की जरूरत है. होप डेरिवेशन समझ में आया होगा. सो एफ डैश जेड इज नथिंग बट del f del x where f is function of x and y and that is also equals to del f del y. ये कंडीशन हमारे पास आ गई. अब इससे वी कैन से कि f क्या है, f z is u x y plus iota v x y. तो यहाँ से del f del x क्या होगा, that will be u x plus iota v x. ऐसे ही del f del y क्या हो जाएगा, u y plus iota v y. इसकी वैल्यू यहाँ अगर पुट करते हैं, del f del x is ux plus iota vx माइनस आयोटा uy प्लस आयोटा vy. अब इसमें क्या है, ये ux दिस इज माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस vy, सो इधर आके माइनस vy प्लस आयोटा vx प्लस uy इक्वल्स टू जीरो. जीरो कैन बी रिटन एज आयोटा जीरो प्लस जीरो. सो अगर कोई भी इमेजिनरी नंबर इफ x प्लस आयोटा y इज जीरो हो, दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन x इज जीरो एंड y इज जीरो. तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे. दिस थिंग जीरो मीन्स ux इक्वल्स टू uy, vx प्लस uy जीरो मीन्स ux इक्वल्स टू माइनस uy और uy इक्वल्स टू माइनस vx. वी कैन से दिस इज द कॉची-रीमन इक्वेशन. ठीक है, सिंपल था. सो बेसिकली द ओनली कंडीशन वी नीडेड दैट कि f डैश z एग्जिस्ट करना चाहिए, देन f डैश z विल बी del f by del x. तो अगर हमें f z दिया हुआ है, इफ वी आर गिवन f z इन टर्म्स ऑफ x एंड y, तो हम f डैश z डायरेक्टली del f by del x करके निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट f डैश z एग्जिस्ट. ठीक है, सो ये समझ में आ गया आई थिंक. सो दिस वाज द definition of, this was the derivation of Cauchy-Riemann equation. Okay, so now let us see, हमने जो भी क्वेश्चन डिस्कस किया था f z इज इक्वल्स टू
x square plus iota y square. Okay, this was for all values actually. So this function, इसकी एनालिटिसिटी हमें जैसे डिस्कस करनी थी. अच्छा, इसकी डिफरेंशियबिलिटी के लिए ये इफ वी कंपेयर दिस बाय u प्लस iota v, तो u क्या है, x स्क्वायर है and v is y square. Now if we write ux, that will be 2x, uy is 0, again vx is 0 and vy is 2y. Now Cauchy-Riemann equation क्या बोलती है? Cauchy-Riemann says that ux equals to vy and uy equals to minus vx. So ये uy तो 0 है, minus vx है तो 0 0 तो हो गया. From this we can write to x equals to y equals to x equals to y. ठीक है. सो इसका मतलब ये होगा कि जो ये फंक्शन है इट वॉन्ट बी, मतलब इट सेटिस्फाई Cauchy-Riemann इक्वेशन ओनली एट y इक्वल्स टू x. ओके, ओनली इस पे ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब y इक्वल्स टू x लाइन के लॉन्ग जितने पॉइंट है इंक्लूडिंग 0 0. ओके, सो इस पॉइंट्स पे ये डिफरेंशिएबल हो सकता है. वी कैन नॉट से कि डिफरेंशिएबल होगा ही सही बिकॉज दिस इज नॉट इन सफिशिएंट कंडीशन. Cauchy-Riemann equation is only in necessary condition. So this is the there is a possibility कि y equals to x जो है वहां पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो सकता है. तो इस पे हम फिर चेक करेंगे स्टैंडर्ड डेफिनेशन से. सो लेट अस से कि y equals to x तो क्या हो जाएगा, f z क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस आयोटा x स्क्वायर हो जाएगा. सो y equals to x पुट किया हमने, so this function is f z equals to x square 1 plus iota. ये तो एक कांस्टेंट टर्म है, एफ जेड इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर आ गया. सो बेसिकली ये तो इट इज इक्वल टू सेइंग दैट ए टाइम्स सम एक्स स्क्वायर, और ये तो एक पॉलिनोमियल है सो ऑब्वियसली इट विल बी डिफरेंशिएबल. ठीक है, इसको सोल्व करके भी देख सकते हैं. जैसे एफ डैश जनरल पॉइंट पे क्या होगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 प्लस आइटा होगा लेट अस से ए, तो एक्स प्लस एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एच. तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, अगर इसको ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2xh प्लस एच स्क्वायर डिवाइड बाई एच, दैट इज लिमिट एच टेंड्स टू 0 a 2x प्लस एच टेंड्स टू 0 तो ये आएगा a टाइम्स 2x, a इज 1 प्लस आइटा 2x. सो दिस लिमिट एग्जिस्ट एंड दिस इज दिस. तो मींस का मतलब क्या हुआ कि ये डिफरेंशिएबल है. सो जो फंक्शन गिवन है दैट इज डिफरेंशिएबल अलोंग लाइन y इक्वल्स टू x. ठीक है, अब इस पॉइंट पे सिर्फ इस लाइन पे जितने पॉइंट है उस पर डिफरेंशिएबल है. अब किसी भी पॉइंट वाले जैसे ये पॉइंट है उसका जो एप्सिलॉन एब्रूड होगा उस पे बहुत से पॉइंट है जो इस लाइन के बाहर लाई कर रहे हैं तो उन पे तो डिफरेंशिएबल नहीं है. इसका मतलब देयर इज नो पॉइंट, कोई पॉइंट नहीं है जहाँ पे एनालिटिक होगा. सो दिस फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एनीवेयर इन द डोमेन. ठीक है, तो समझ में आ गया. अच्छा, इसमें हमने देखा कि जो Cauchy-Riemann इक्वेशन है दोज आर ओनली नेसेसरी कंडीशन, वो सफिशिएंट नहीं है. तो उनको सफिशिएंट कैसे बनाया जा सकता है कि हम लोग के पास अगर मान लो Cauchy-Riemann इक्वेशन आर सेटिस्फाइड by a function fz u plus iota v, first thing. Okay, if that those are satisfied, and दूसरा जो u and v है, जो रियल पार्ट इज u and imaginary part v, if their partial derivative exists, okay, and these partial derivatives are continuous, okay, at that point. अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है, बेसिकली तीन कंडीशन हो गई है. फर्स्ट थिंग दैट Cauchy-Riemann इक्वेशन इज सेटिस्फाइड. सेकंड थिंग इज दैट पार्शियल डेरिवेटिव मतलब डेल यू डेल एक्स डेल वी डेल वाई, ये जो चार पार्शियल डेरिवेटिव होंगे डेल यू डेल वाई डेल वी डेल एक्स एंड डेल वी डेल वाई, these exist and they are continuous also. ठीक है, then we can say that f dash z will exist. Okay, so basically if no, condition 1 ux equals to vy and uy equals to minus vx, this is nothing but Cauchy-Riemann equation. And second, partial derivative
of u and v exists. This is second condition. And see, it is not or, this is and these partial derivatives are continuous, then f dash z exists. इसका मतलब ये हुआ कि then f z will be differentiable at z equals to x plus iota y. Okay, so this is the reverse of Cauchy-Riemann equation. If these three conditions are satisfied, then f dash z will exist, and if f dash z exists, then these conditions will be satisfied anyway. ठीक है. So now ये क्लियर है. अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर हम तीनों कंडीशन का यूज करके हमने देखा कि जो हमने फंक्शन लिया है z एक्स स्क्वायर प्लस आईटा वाई स्क्वायर. ओके, इन दिस फंक्शन Cauchy-Riemann इक्वेशन से वी गोट की y इक्वल्स टू x होगा, तब फंक्शन एफ जेड डिफरेंशिएबल हो सकता है. उसके बाद हमें क्या देखना है, यहाँ पे u क्या है, इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट ऑफ एफ जेड. दिस इज u प्लस आईटा वाई एंड v इज वाई स्क्वायर. तो यहाँ पे u इज ए पॉलिनोमियल ऑफ x एंड v इज पॉलिनोमियल ऑफ y. तो इनके पार्शियल डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट करेंगे बिकॉज पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल एट ऑल वैल्यूज. सो इनके पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे, और पार्शियल डेरिवेटिव जैसे डेल यू डेल एक्स का क्या होगा, 2x होगा, ऐसे इसका 2y हो जाएगा, 0 आएंगे विद रिस्पेक्ट. और ये जो 2x 0 दीज आर इटसेल्फ पॉलिनोमियल्स होंगे, सो वो भी कंटिन्यूस में होंगे. सो फ्रॉम दिस वी कैन से ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. Cauchy-Riemann इक्वेशन तो सेटिस्फाई होगी y इक्वल्स टू x पे, फर्स्ट थिंग. सेकंड, जो u एंड v है उनके पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं, दे आर कंटिन्यूस. सो y इक्वल्स टू x इज द पॉइंट जहाँ पे फंक्शन जो f z है वो डिफरेंशिएबल होगा. बट देन एनालिटिसिटी देखने के लिए तो वही चीज है, उस पॉइंट के नेबरहुड में देखना पड़ेगा, नहीं है यहाँ पे. सो दिस इज नॉट एनालिटिक एनीवेयर. ओके, सो ये समझ में आ गया होगा, एक वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट था. अब इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है कि Cauchy-Riemann इक्वेशन से इम्पोर्टेंट है, वैसे Cauchy-Riemann इक्वेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है कि इसमें जो एफ जेड है वो u प्लस आईटा वी होगा. और लेट अस से कि एफ जेड जो है वो एनालिटिक फंक्शन है. दिस इज एनालिटिक फंक्शन. अगर कोई भी फंक्शन एनालिटिक है तो डिफरेंशिएबल तो होगा ही, एफ डैश जेड तो एग्जिस्ट करेगा ही. पर अगर वो एफ डैश जेड एग्जिस्ट करता है तो जरूरी नहीं है कि वो एनालिटिक होगा. ओके, रिमेंबर दैट. तो इसमें क्या है, एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है, देन एफ डैश जेड जो है वो एग्जिस्ट करेगा, फर्स्ट थिंग. तो यहाँ से इसका जो रियल पार्ट है u एंड v, इनको हम बोलते हैं, दिस u is known as harmonic conjugate of v. Okay, or means u is nothing but harmonic conjugate of v. Okay, similarly, अच्छा, अगर u हार्मोनिक कंजुगेट है v का, so can we say कि v is harmonic conjugate of u? No, we cannot say that. इसके लिए जरूरी है कि जो है रियल पार्ट है दैट इज इमेजिनरी पार्ट का हार्मोनिक कंजुगेट होगा. तो अगर हम लोग इसमें आयोटा एफ जेड लिखते तो वो क्या आएगी, आयोटा u माइनस v, और वी कैन राइट माइनस v प्लस आयोटा v u. तो अगर एफ जेड एनालिटिक है तो आयोटा एफ जेड भी एनालिटिक होगा, बिकॉज एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने से उसकी एनालिटिसिटी पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, बेसिकली डिफरेंशिएबिलिटी इन द रीजन. तो इसमें हम क्या बोलेंगे, माइनस v इज कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ harmonic conjugate of u. Okay, so u is harmonic conjugate of v and minus v is harmonic conjugate of v. Okay, I think ये क्लियर हो गया होगा. So this अब रिलेटेड इसी में भी हम लोग देख सकते हैं कि जो है ये जो u and v है ये लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. फर्स्ट थिंग, व्हाट इज लाप्लास इक्वेशन? लाप्लास इक्वेशन होती है डेल स्क्वायर u डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर u डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 इन 2D. दिस इज द लाप्लास इक्वेशन.
तो यहाँ पे हम वी नो कि एफ जेड एनालिटिक है, तो यू एक्स इक्वल्स टू वी वाई होगा और यू वाई इक्वल्स टू माइनस वी एक्स होगा। तो यहाँ से वी कैन से यू एक्स एक्स क्या हो जाएगा, दिस इज वी, सो यू एक्स एक्स विल बी वी एक्स वाई एंड यू वाई वाई क्या हो जाएगा, माइनस माइनस वाई एक्स और एक्स वाई। अगर ये अच्छा, अगर एक वी एक्स वाई कंटिन्यूस है देन वी एक्स वाई इक्वल्स टू वी वाई एक्स हो जाता है। ये रियल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ से इफ वी एड यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई तो क्या हो जाएगा, वी एक्स वाई माइनस वी वाई एक्स, बट दीज आर इक्वल क्योंकि अगर एफ जेड है, एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन है ना, इफ एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन then all partial derivative of all order of u and v exist and are continuous. Okay, if fz is analytic, if fz is an analytic function, then all order of partial derivative of u and v exist and they are continuous. So अगर इसके second partial derivative continuous है vxy, so this will be equals to vyx, so this will be 0. So basically similarly we can say for v, ठीक है, so this u and v they are solution of Laplace equations. So these harmonic functions, harmonic conjugates will satisfy the Laplace equation. ठीक है, now okay, so let us take some question in this context. Let us say यहाँ पे जो एफ जेड है तो u प्लस आइटा भी है, ठीक है। अगर हम लोग कोई दो सरफेस ले लेते हैं, u इक्वल्स टू c1 एंड v इक्वल्स टू c2, दीज आर द इक्वेशन ऑफ सरफेसेस। वो कैसे, बिकॉज u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, so this will represent a surface, similarly this will also represent a surface. okay, अच्छा कोई भी सरफेस है तो उसका नॉर्मल, if this surface is u equals to c, then इसके जो नॉर्मल की डायरेक्शन होती है वो ग्रेड u होती है, we know that gradient of u is the direction of normal to that surface, ठीक है। सो इसका जो नॉर्मल होगा वो ग्रेडियंट ऑफ u होगा, लेट्स से n1 वेक्टर, ऐसे n2 वेक्टर क्या होगा, ग्रेडियंट ऑफ v। अगर हम लोग अब डेल u डॉट डेल v करें, व्हाट इज डेल u, gradient of u is del del x I k plus del u del y j k, that is the definition of gradient, dot del v del x I k plus del v del y j k, ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट है, सो दैट del u del x del v del x plus del u del y del v del y, this is nothing but ux and vy vx plus uy vy। ux को हम लोग क्योंकि एफ जेड जो है वो एनालिटिक फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन है, अगर एफ जेड एनालिटिक है तो ux विल बी वी वाई एंड uy विल बी माइनस वी एक्स, तो बेसिकली ये माइनस हो गया, दिस इज 0। ओके, सो फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन से, अगर एफ जेड एनालिटिक है एंड u उसका रियल पार्ट है और v उसका इमेजिनरी पार्ट है, और अगर u इक्वल्स टू c1 और v इक्वल्स टू c2 दो सरफेसेस है, then the angle between their normals will be 90 degree। a dot b0 का मतलब क्या हुआ कि a vector is perpendicular to b vector unless they themselves are 0, ठीक है। so इससे यह यहाँ से हम कह सकते हैं कि सिस्टम u इक्वल्स टू c1 एंड u इक्वल्स टू c2, ये जो सरफेस का सिस्टम है, they represent orthogonal system of orthogonal, they are orthogonal surfaces। okay,